गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज और पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे? दो चीज़ें बेसिकली वी गोना लर्न अबाउट टू थिंग्स. First, what are the major environmental issues that are the globally important and we are facing in today's life? And second, what are the policies to cope with these global environmental issues and the other local environmental issues also. So we learn about the what are the international policies, then we learn about what are the Indian policies and law to cope up the environmental issues for the better management of environment. So we gonna learn about the act which are available in Indian law, so that can ensure the enforcement of the law to protect the environment. So दो पार्ट्स होंगे. सो फर्स्ट पार्ट हम आज पढ़ेंगे and next part we're going to study in next class that will be on next Thursday. So आज की क्लास में we're going to study about the global environmental issues. So what are the environmental issues which are globally important? So we're going to learn about that. So first of all, how we get into the situation when where that environmental degradation is started and the rise of environmental issues was there. So how we how we reach to that point where environmental depletion is there and there are major environmental issues, we need to deal with them. So why? Because first of all, so there is development, है ना? So we are doing rapid development after the industrial era. So what happened? Because of the development, there are lot of byproducts is came into the environment. So we see the carbon dioxide level increase in the environment that become a cause for global warming and climate change. Then again, we see a lot of pollution is there because of the industries. So we need development, no doubt, but the development which is sustainable. We need a sustainable development. So from unstable or unsustainable development, we need to go towards the sustainable development, है ना? So what happened? The rich nation of the world consume most of the non-renewable natural resources, है ना? So it it causes lot of energy shortage, pollution problem, and global warming, and other problems. It is now recognized that the model of growth and development is unsustainable. So we need to go for a sustainable development. What is sustainable development? When we do डेवलपमेंट करना है बिकॉज ऑफ अपनी जो इकोनॉमिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए और जो सोशल नीड है उनको पूरा करने के लिए. लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक चीज़ों के लिए डेवलपमेंट करेंगे तो वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा. सो वी नीड टू डू डेवलपमेंट विच इज सस्टेनेबल, विच इंक्लूड द three parts or three ingredients which include the economic aspect, which include the social aspect, and which include the environmental aspect. So economy, society, and environment, three need to be go together for sustainable development, and we use the resources in that manner that looking into the need or taking care of the need of the future generation also. We can't use all the resources by now.
So we need to use the resources, keeping in mind that future generation require the resources, the requirement of the future generation, and we take care of the three parameters of the three aspect of the development: the economy, the society, and the environment. Then it's called as a sustainable development. Okay. So, sustainable development require that for any activity that brings about economic growth, the corresponding environmental impact must be studied, and the negative aspect should be addressed for the society and for the environment. Okay. सो इसके लिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए देर इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA इज अ प्रोसेस कॉल। सो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर एक्टिविटी होने वाली है तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एक असेसमेंट होता है पहले ही। तो उससे अगर हमें असेसमेंट से पता चलता है कि ये लॉस होने वाला है, तो या तो हम उस चीज को फुलफिल करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं उस प्रोजेक्ट में, या फिर उस प्रोजेक्ट को पास नहीं किया जा सकता अगर उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा हो, नेगेटिव हो रहा हो तो। सो देन वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कंज्यूम, है ना। और जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल वे था हमारा जीने का, उससे अपन अभी अर्बन, रूरल से अर्बन की तरफ अपना लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अर्बन हीट आइलैंड बनने से वी नीड लॉट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। सो इसको अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, या तो सोलर एनर्जी यूज की जाए, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सकता है उसकी तरफ हम लेके जाएं, तो इट विल बी हेल्पफुल। ओके। तो अब कुकिंग में लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अर्बन ट्रांसपोर्ट में लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना। तो एफिशिएंट हमें पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है, जिससे कि एनर्जी थोड़ा कम यूज़ हो। ठीक है। तो ये तो एक मोटा मोटी तौर पे कि क्यों प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से, हाई एनर्जी नीड्स की वजह से, ये हमारी प्रॉब्लम्स आपकी डेवलप हो रही है। बट मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, इन्वायरमेंट के मेजर ग्लोबल इश्यूज क्या है? फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, सेकंड इज ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड इज ओजोन ozone layer, third is acid rain, fourth is ozone layer depletion, and fifth is nuclear accident and holocaust. So nuclear accident are also a big environmental problem because it is very harmful. The substances which are radioactive, if if we got exposure to them, it is very harmful. So it sometimes it's happen accidentally by leakage or anything, but it is very harmful. The waste generated from these activities is also very harmful, so we need to take care of this also. So first of all, we talk about climate change and global warming. So these are the two related things. Okay. क्लाइमेट चेंज मतलब कि अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमें कंटिन्यूअस कोई पैटर्न देखेंगे जिसमें कि कोई क्लाइमेटिक वेरिएबल चेंज हो रहा हो। अराउंड जनरली हम इसको 30 years का एक एवरेज पैटर्न देखते हैं, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो दे सी इट। सो व्हाट हैपन कि आपका अगर कुछ भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट का कोई भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर में कमी हो रही है, रेन राइज हो रहा है, रेन में कमी हो रही है, व्हाटएवर वेरिएबल इज चेंजिंग वी कॉल इज इट
climate change. And what is happening right now, we are facing a lot of global warming. मतलब climate change का कौन सा part हम अभी face कर रहे हैं, that is global warming. Like the temperature is increasing and we are seeing it very predominantly कि temperature increase हो रहा है. So कैसे temperature increase हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो बोल सकते हैं, या टेम्परेचर इंक्रीज होना हो बोल सकते हैं. सो नेचुरली क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उस पे सन से रेडिएशन आते हैं. हमारी मैक्सिमम एनर्जी का सोर्स तो वही है ना. तो सन से रेडिएशन आते हैं जिससे कि एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है. तो अब ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका सन से देखो रेडिएशन आती है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है. यहाँ पे ये आपकी सरफेस मान लो, जमीन मतलब अर्थ का सरफेस है. तो सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, इससे टकराती है और लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस चली जाती है. ठीक है. तो ये एक हमारा ऐसा लेयर बना हुआ है ना. तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा विंडो रहता है जिसमें से रेडिएशन आना अलाउड होता है, जाना अलाउड होता है गैसेस का. अब क्या होता है, जो आपकी ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड आपके नाइट NO3, और ये जो गैसेस है, दे आर एंड मीथेन ऑल्सो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. मतलब तो इनसे कॉज होता है. इनसे कैसे कॉज होता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में क्यों ना, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बहुत मात्रा बढ़ गई है. तो क्या करते हैं वो, जब भी आपकी आती है शॉर्ट वेव, इसको तो वो आने देते हैं, है ना. लेकिन जब आपकी लॉन्ग वेव टकरा के वापस जाती है, उसको वो वहां पे रोक लेते हैं. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर रहती है तो आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन को रोक लेती है यहाँ पे. तो अब क्या होगा, वो रेडिएशन रुक गई, वापस नहीं जा पाई, तो यहाँ पे पृथ्वी के आसपास टेम्परेचर राइज हो जाएगा. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो ये आपका हुआ क्लाइमेट चेंज के बारे में कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. अब इंडस्ट्रियल एरा के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है. सो अराउंड जो मतलब काफी मात्रा बढ़ गई है. अभी 4 ppm से ऊपर चली गई और ये और बढ़ती जा रही है. एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि अभी ये रुक गया है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है वो भी हर साल मतलब धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो हम देख रहे हैं कि 10 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है. तो वी हैव सम लॉन्ग टर्म गोल की 2050 तक हम उसको 0.5 तक ही रखेंगे, टेम्परेचर राइज को उसको कम करेंगे. तो कैसे कम कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनमें कट करके, है ना, उनके इमिशन को कट करके. तो फिर हम जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनकी तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है उनसे कार्बन डिप्लेशन हो रहा है. फिर प्लस अपन कार्बन को किस तरह ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं. कार्बन पेड़ पौधों में स्टोर होता है, सॉइल में स्टोर होता है. तो किस तरह से हम उसको कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं. तो ये दोनों तरह की पॉलिसीज हमारी साइमल्टेनियसली चलना ज़रूरी है टू डील विथ ग्लोबल वार्मिंग, है ना. ठीक है. अब इसमें सडन, इसमें तो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट क्या होगा कि जो पोलर क्रैप्स है या ग्लेशियर्स हैं वो, उनका क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है ना. फिर सी लेवल राइज हो रहा है उसी की वजह से, है ना.
इससे क्या होगा कि लो जो एरियाज है सी के पास में है, लो एलिवेशन के एरियाज, वहाँ तो क्या होगा कि वो अंदर डूबने का उनका खतरा है। फिर उसके अलावा टेम्परेचर का राइज हो रहा है, उसके अलावा कुछ कुछ सडन चीजें भी इससे हो सकती हैं, जैसे कि हैरिकेन्स वगैरह, टाइफून्स, है ना। डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और रेन पैटर्न भी चेंज होने की वजह से, जिससे की वजह से फूड स्टोरेज शॉर्टेज ज़्यादा हो रहा है। फिर वेक्टर बोर्न डिजीजेस भी हो सकती है, जैसे कि हम अभी इतना बड़ा हमने पैंडेमिक देखा है कोविड का। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वो भी किसी वेक्टर, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया के पैदा होने में या उसके बढ़ने में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो तो अभी पिछले 100 सालों में बहुत पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत डिमांड इंक्रीज हुई है। उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हुआ, और फॉसिल फ्यूल कंजप्शन से क्या निकलता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो उससे क्या हुआ कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और अर्थ के टेम्परेचर में राइज हुआ और क्लाइमेट चेंज हुआ। ठीक है। तो अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हमने बताया इसके इम्पैक्ट कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग, सी लेवल राइज, फिर आपके सडन जो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, फिर डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट ज़्यादा बढ़ना, जिससे क्या होगा, लैंड यूज, लैंड कवर चेंज हो रहा है ना। उससे क्या हो रहा है कि लैंड यूज, लैंड कवर क्या होता है कि हम लैंड को किस चीज के लिए यूज करते हैं, दैट इज लैंड यूज, और उस पे किस तरह का कवर है, जैसे एग्रीकल्चर कवर है, फॉरेस्ट का कवर है, क्या कवर है उसके ऊपर, है ना। तो इस तरह से तो लैंड यूज, लैंड कवर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फिर से लैंड यूज, लैंड कवर उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो दोनों चीजें चल रही हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब इसको कम कैसे किया जा सके कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ज़्यादा आए, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनको दोबारा यूज़ किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। और जो तो और जिनसे कि ये क्लीन एनर्जी सोर्सेज भी हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। ठीक है, बहुत कम निकलती है। दूसरा आपका प्रॉब्लम क्या है, एसिड रेन का। तो जो फॉसिल फ्यूल है उसकी बर्निंग से क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। अब ये वाटर वेपर के साथ में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अब ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, ये हो जाता है डिसॉल्व, है ना। और ये क्या होता है, पानी के साथ नीचे आ जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो पानी, बारिश का पानी, उसकी पीएच बहुत कम हो जाती है, वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। दैट उससे क्या होता है कि वो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको डिसॉल्व कर देगा, उसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाएगी, है ना। और वेटलैंड्स, रिवर, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि फूड चेन डिस्टर्ब होगी। ठीक है। तो अपने जैसे ताजमहल पे भी, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह को भी इफेक्ट करती है एसिड रेन। एसिड रेन की प्रॉब्लम नेचुरली इंडिया में उतनी ज़्यादा है नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ताजमहल के केस में तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी रिफाइनरी आसपास थी। बाकी इंडिया के केस में इतना ज़्यादा एसिड रेन का इशू नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे N2 पाया जाता है ऐसे ही उसके अंदर। और ये आपके सस्पेंडेड मैटर बहुत ज़्यादा होता है एयर में, तो उससे क्या होता है कि एसिड रेन कंट्रोल रहती है। हमारे यहाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। फिर आपका ओजोन लेयर डिप्रेशन की एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, लेकिन अभी काफी हद तक इस पे कंट्रोल पा लिया गया है। किस तरह से कि इसके लिए जैसे आपका
क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए भी कई तरह के वो हुए हैं, मतलब पैक्ट्स वगैरह, मीटिंग वगैरह, है ना। तो इसमें आईपीसीसी की मीटिंग है, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल हो, लेकिन उनका इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिर भी चाहिए, कार्बन फिर भी रिलीज हो रही है। लेकिन अब ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या हुआ, सॉरी, ओजोन डिप्लीशन के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, है ना, आया था। और इसके लिए आपके क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल, ये अलग अलग आपकी जो सीओपी स्कोप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं आईपीसीसी के तहत, तो ये सब यूएन के तहत, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। सो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए इस तरह के अलग अलग चीजें होती हैं। पर जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए, दैट इज वेरी सक्सेसफुल। उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी काफी हद तक बैन हो चुकी है। तो कैसे इस तरह से हुआ आपका ये ओजोन डिप्लीशन कैसे हुआ, तो अपने यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है ना, स्टेटोस उसमें ट्रोपोस स्टेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर में क्या होता है कि एक पूरी ओजोन की लेयर बनी होती है। तो ओजोन दो जगह पाई जाती है ना, एक तो स्टेटोस्फेयर में, एक ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में जो एकदम पास में पाई जाती है जमीन के ऊपर, वो तो क्या है, एक पॉल्यूटेंट की तरह है, उसको तो हम बोलते हैं बेड ओजोन, जो आपका बनता है। लेकिन जो नेचुरली ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जिससे हमारी सांस से जो कुछ भी लेना देना नहीं है उसका, मतलब उससे हमारा वो ऊपर की तरफ है, तो वो क्या है, जो सन से आने वाली एक पूरी लेयर बनी रहती है ऊपर ओजोन की, वो उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। वो क्या होता है, सन से आने वाली जो भी हार्मफुल रेडिएशन है उसको वहीं रोक लेता है, वो नीचे नहीं आ पाती है ना। जो यूवी रेडिएशन है जो कि हार्मफुल हो सकती हैं, तो उससे, तो अब ये गुड थिंग, अब क्या हुआ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनके अंदर जो आपका एक्टिवेटेड क्लोराइड पाया जाता है, वो क्या करता है कि इस ओजोन लेयर, ओजोन के साथ में रिएक्शन करके, और उसका ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि यूवी रेस को रोकना बंद कर देगा, ओजोन ऑक्सीजन में डिप्लीट हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो यूवी रेस को नहीं रोक पाएगा, जिससे कि काफी हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं उन यूवी रेडिएशंस के एक्सपोजर से। उससे बहुत सारी स्किन डिजीज हो सकती है, कैंसर वगैरह हो सकते हैं, पेड़ों को बहुत हार्म हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स और बहुत सारी डिजीज। अब ये क्या, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के वहां पे वो ओजोन में क्या हुआ कि डिप्लीशन होने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि वहां पे एक थिन हो गई वो लेयर थिक से, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ओजोन लेयर में छेद होने लग गया, होल होने लग गया है। सो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, जिससे सीएफसी को बैन किया गया। तो अब वापस ओजोन लेयर डिप्लीशन की प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो गई है। अब पांचवी प्रॉब्लम क्या है आपकी, न्यूक्लियर एक्सीडेंट और जो हॉलोकास्ट होते हैं बड़े, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी है ना, और थोड़ा चीप सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इसमें जो यूज होता है, अगर उसको हम ऐसे कंट्रोल रखेंगे सही से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अगर वो लीक हो गए, उनका एक्सपोजर हो गया, तो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है। इसमें ह्यूमन लाइफ का लॉन्ग टर्म इलनेस, कैंसर, थायराइड, ट्यूमर्स, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे पैदा होना, जेनेटिकली कुछ उनमें प्रॉब्लम्स आ जाना, तो ये सब
चीज़ें लॉन्ग टर्म बहुत इम्पैक्ट होता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का, है ना। तो ये 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट हुआ था, है ना। सो और कार्बोनिल ये यूएसए में और यूएसएसआर में हुआ था। फिर उसके बाद में अभी तक भी जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको कंटेनर में अगर सी में डिस्पोज करते हैं तो वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान होता है। अगर वो जो डिस्पोज है उसका अगर वो एक्सपोजर हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर आपके न्यूक्लियर वेपन जो यूज हुए थे उनसे भी हिरोशिमा नागासाकी में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जापान में 1945 में हुआ था, तो बहुत बड़ा हॉलोकास्ट हुआ। उसकी वजह से अभी तक वहां पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं वहां के लोगों पे। ठीक है। फिर एक चीज जो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट लैंड को किस तरह से रिक्लेम किया जा सके, यूज किया जा सके, क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, अभी जंगल ये सब खत्म होते जा रहे हैं। सो इससे सॉइल इरोडेशन हो रहा है ना, तो ये एक तरह से वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको हमें वापस किस तरह से एक यूजफुल उसमें रिक्लेम किया जाए, वापस किस तरह से एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन किया जा सके। तो उससे क्या होता है, उसमें कई तरह की, एक तो वहाँ पे साल्ट कंटेंट को कम किया जा सकता है, मिक्स एग्रीकल्चर की जा सकती है फॉरेस्ट्री के साथ में, और जो इंडिजिनियस ट्री स्पीशीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। तो उससे क्या होगा कि वापस हम उन जगहों को रिक्लेम कर सकते हैं, वेस्टलैंड्स को। अब जो कंज्यूमरिज्म है उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट आपका हो रहा है, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है बहुत मात्रा में, तो वो भी काफ़ी हार्मफुल है। ठीक है। तो इसके लिए अब अपन ने एक पिछली क्लास में बात की थी कि अपन को 4R या 5R का सिद्धांत यूज करना है, कि सबसे पहले रिड्यूस, कम से कम यूज करो, फिर यूज करो, फिर रिसाइकिल करो, फिर जो वेस्ट बचा उसमें रिकवरी करो, देन रिफ्यूज इट। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है ना। और फिर प्लास्टिक आइटम्स को कम यूज करना, ये सब आपका जो ग्रोस कंज्यूमरिस्टिक लाइफ है, मतलब ज्यादा हम क्या है आजकल हर चीज को यूज किया, थ्रो किया है ना तुरंत, एंड बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल अपन उसको सुविधाओं के चक्कर में इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो उसको कम किया जाए कम से कम, और एक सस्टेनेबल लाइफ जीना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल, अब तो ये तो हमने बात की कि ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, अब इनका किस तरह से समाधान हो सकता है, उसके लिए इन्वायरमेंटल लॉ, है ना, क्या क्या लॉज है, क्या क्या पॉलिसीज है इन्वायरमेंट की, जिससे कि हम इनके बारे में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में हम मतलब इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो देखो आपके इन्वायरमेंट के बारे में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में बात हुई है ना, आपके फंडामेंटल राइट में बात हुई है, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। ठीक है। और अपना राइट भी है एक स्वच्छ हवा पानी, और हमें एक लिवेबल कंडीशन मिले। ठीक है। और हमारी ड्यूटी भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब उसके बाद में इसके लिए स्पेशल स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो सबसे एक जो बड़ा एक्ट है वो क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, इसके अंदर काफी सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और एसपीसीबी को बनाया गया है इसमें, है ना। तो किस तरह से जो लिमिट किया जा सके इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, किस तरह से एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन इनको कम किया जा सके, तो एक
लिमिट सेट की जा सके कि इंडस्ट्रीज से जो इफ्लुएंट आता है या जो एयर मतलब एयर में जो एग्जॉस्ट छोड़ा जाता है उसमें कितना लेवल हो हर चीज का, है ना। तो और अपने पीने के लिए कौन सा पानी सूटेबल है या एयर सूटेबल है हवा के सांस लेने के लिए, तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड इसके तहत बनाए गए। इसके अलावा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1987, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये मतलब वाटर के लिए एयर के लिए अलग से है आपके ना, ठीक है। तो ये इस तरह से। उसके अलावा सबसे पहला लॉ कौन सा आया था, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो जिसके तहत नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क बने, सेंचुरीज बनी, है ना, और बायोस्फीयर रिजर्व्स बने, उसके तहत आपके इनको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया। तो अर्थ सबमिट हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी जी गई थी। तो उन्होंने उसके तुरंत बाद में आके 1972 में हमारे यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। उस समय पोल्यूशन या ये समस्या इतनी थी नहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने एक लॉन्ग रन के लिए एक दूरदर्शी उसमें सोच के तहत उसी समय बना दिया। तो हमारे काफी जंगल और जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है उनका प्रोटेक्शन हो गया उस तरह से। तो इट वाज अ वेरी गुड स्टेप। तो फर्स्ट इन्वायरमेंट आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में। उसके बाद धीरे धीरे जो समस्याएं आती गई उनके समाधान के लिए धीरे धीरे अलग अलग लॉज बनते गए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लॉस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनसे रिलेटेड जो लॉ है वो सिलेबस में इतना दिए नहीं गए हैं, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगी कि क्या क्या है। जैसे कि यूएनएफसीसी है, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये सब चीज़ें। तो इसके बारे में हम थोड़ा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रूल्स के बारे में बात करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो हम बात कर ही चुके हैं, जो आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए है ना। बाकी इंडिया के सेंस में एसिड रेन इतनी प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहाँ पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम पोल्यूशन के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या लॉज है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई विल वाइंड अप क्लास अर्ली। कल हम थोड़ा और डिटेल में सारे लॉस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में। आपका कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं मैं ज़्यादा अच्छे से कवर करूँ नेक्स्ट क्लास में, तो वो प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मुझे बता दीजिए। कुछ अभी समझ में नहीं आया हो और नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा अच्छे से कवर करना हो तो यू कैन टेल मी। देयर इज़ नो क्वेश्चन अभी तक। आप जो भी आपका कोई क्वेश्चन सजेशन कुछ भी है, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन में बता दीजिए मुझे। आई एम वेटिंग। I'm waiting for your questions or any suggestion or any topic which you don't understand much and you want to me cover more in the next class. Kindly tell me that. Any questions? कोई टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना है जो समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज़ वो आप लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिखते। आई एम वेटिंग।
No question? ओके सो फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो इन्वायरमेंटल लॉज है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये पीपीटी पूरी हो जाएगी, मैं इसको आपको डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूँगी। आई होप आप लोगों को स्टडी मटेरियल वगैरह मिल गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।
ये कोई स्टूडेंट ने बुक का नाम पूछा है इंग्लिश की का। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बुक का नाम जो मुझे ठीक लगती है, दैट इज इरेक बरूचा की बुक है, ये मुझे ठीक लगती है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अभी वैसे भी लोग कोई है नहीं। नेक्स्ट क्लास में अगेन आई विल टेल द बुक नेम, एंड इफ आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी आई विल अपलोड इट ऑल्सो, है ना। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। So my class is done. If you want, you can end it, है ना। Okay, thank you.